الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ آج کے درس میں ہم اسم کے بارے میں جانیں گے کہ جنس کے لحاظ سے اسم کے اقسام کیا ہے، کیسے ہم جانیں گے کہ اسم میں یہ جو جنس ہے، یعنی اس کا جو جنڈر ہے، یہ مسکولائن ہے، یہ فیمنائن ہے۔ اس کے بارے میں آج کا درس انشاءاللہ ہوگا۔ کچھ مثالیں دی جائیں گی تاکہ آپ کو اسم کے بارے میں چیزیں واضح اور کلیئر ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی میں جب ہم پارٹس آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، جیسے انگریزی میں ہمارے پاس 8 قسم کے پارٹس آف سپیچ ہے، یعنی جو بھی انگلش ہمارے پاس ہے وہ پورا انگلش اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح عربی میں جو بھی آپ الفاظ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں یا کسی بھی عربی زبان کے کوئی بھی گرامر کے اصول کے حساب سے، تو پورے جو الفاظ ہمارے پاس ہیں ان کو 3 قسموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یا تو عربی میں جو بھی آپ کے سامنے لفظ ہوگا وہ اسم ہوگا، یا پھر فعل ہوگا، یا پھر وہ حرف ہوگا۔ اسم جب ہم بات کرتے ہیں عربی میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے درس میں نے اس کو بیان کیا، اسم سے مراد ناؤن بھی ہے، پروناؤن بھی ہے، ایڈجیکٹو بھی ہے اور ایڈورب بھی ہے۔ یعنی انگریزی میں جو 4 الگ الگ قسمیں ہیں، یہ چاروں قسمیں عربک کے اسم میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح فعل جو ہے عربی میں فعل کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ اور حرف جہاں تک تعلق ہے وہ ہے پریپوزیشن، کنجکشن ایز ویل ایز آرٹیکل۔ تو اس طرح ہم بتا سکتے ہیں کہ عربی میں جو بھی ہمارے پاس پارٹس آف سپیچ ہے وہ صرف یا اسم ہو سکتا ہے، یا فعل ہو سکتا ہے، یا حرف ہو سکتا ہے۔ ان تینوں کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں یہ بتایا کہ اسم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو، کسی بھی شخص کے نام کو، یا کسی بھی جگہ کے نام کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی اچھائی یا برائی جس کو ہم صفت کہتے ہیں، ایڈجیکٹو یا ایڈورب کہتے ہیں، یہ بھی اسم میں آتا ہے۔ فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کو جس کے ساتھ زمانہ پایا جائے، جیسا کہ ہمارے پاس کسی نے کوئی کام کیا، ماضی کا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ جس کو ہم پاسٹ کہتے ہیں، یا ابھی کام کر رہا ہے جیسا میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے پریزنٹ یا حال۔ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آنے والا زمانہ جس کو ہم فیوچر کہتے ہیں، جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں۔ اور اسم اور فعل کے علاوہ جتنے بھی باقی آپ کے پاس عربی کے جملے یا عربی کے الفاظ آپ دیکھیں گے جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، تو اس کو ہم حرف کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ اب ہمارا جو عربی کا یہ کورس ہے بہت ہی آسان ہے، تو ہم سب سے پہلے اسم کو اٹھائیں گے، اسم کے بارے میں چیزوں کو جانیں گے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عربی گرامر کے لحاظ سے جب بھی ہم اسم کی متعلق بات کرتے ہیں، اسم کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے 4 باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ یہ جو اسم ہے اس کا جنس کیا ہے، جنس کا مطلب اس کا جنڈر کیا ہے، یہ میل ہے یا فیمیل ہے، یہ مسکولائن ہے یا فیمنائن ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ دوسرا عدد، عدد کا مطلب ہوتا ہے کہ اسم کتنے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 2 سے زیادہ ہے، یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے وسعت، وسعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو یہ اسم ہے یہ ایک خاص اسم ہے یعنی پراپر ناؤن ہے، یا یہ کامن ناؤن ہے یعنی عام اسم ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے انگریزی میں، اردو میں ہم جانتے ہیں کہ ایک اسم خاص ہوتا ہے، اس کے برعکس میں دوسرا اسم عام ہوتا ہے۔ تو خاص ہے یا عام ہے یہ آپ کو وسعت میں پتا چلے گا۔ اور آخر میں اس اسم کی اعرابی کنڈیشن کیا ہے؟ اعراب سے مراد یہ ہے کہ یہ اسم جو آپ کے سامنے ہے یہ رفع میں ہے، یہ نصب میں ہے، یا جر میں ہے۔ یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اعرابی حالت ہے اسم کی،
याद रखिएगा ये अरबी का खासा है, अरबी ग्रामर का खासा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे ग्रामर में जहां जहां हम जाएंगे ये अरबी हालत आपके साथ साथ जाएगी। आज का जो दर्स है हम इसको मखसस करेंगे, हम जानेंगे कि इसम जिन्स के एतबार से कैसे पहचाना जाता है, या हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो इसम है ये जिन्स के एतबार से मर्द है, औरत है, मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, या मुजक्कर है या मुअन्नस है। देखिए इसम के मुतालिक पहली मालूमात जो हमें पता होनी चाहिए वो जिन्स है। जिन्स का मतलब ये होता है कि आपका जो इसम है ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, यानी ये मस्कुलाइन है ये फेमिनाइन है। जिन्स इसम के मुतालिक ये जानना है कि ये इसम मुजक्कर है या मुअन्नस है, इसको जिन्स कहलाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अरबी जबान में मुजक्कर और मुअन्नस के 3 अकसाम है। सबसे पहली किस्म कि हमारे पास ये जो मुजक्कर या मुअन्नस है ये हकीकी है। हकीकी मतलब रियल। मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई ऐसा इसम है जो रियली हमारे पास मस्कुलाइन है या नर है, तो नेचुरली उस नर का एक मादा होगा। मिसाल के तौर पर आपको मैं कहूंगा उम्मुन। उम्मुन का मुराद होता है, उम्मुन अरबी में कहते हैं औरत को, माँ को। उम्मुन माँ। नेचुरली जब आपके सामने माँ आएगी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो माँ है, ये जो मोन्नस है, इसका मुजक्कर क्या होगा, तो आप कहेंगे अब्बुन यानी बाप। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहला किस्म जो इसम के जेंडर या इसम के जिन्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है वो ये है कि इसम ऐसा हो कि जो हकीकी हमारे पास मुजक्कर या मुअन्नस पहले से हो। मिसाल के तौर पर जब हम माँ कहेंगे तो नेचुरली इसका बाप होगा, माँ उसका अपोजिट में बाप। या माँ हमारे पास अगर मुअन्नस है तो इसका मुजक्कर वालिद यानी बाप है। इसी तरह भाई है तो इसका जो मुअन्नस हमारे पास वो बहन है। यानी हकीकी जो हकीकत में आपके सामने कोई जेंडर पहले से पेश कर रहा हो, ऐसे इसम को हम कहते हैं मुजक्कर या मुअन्नस हकीकी, रियल मस्कुलाइन या रियल फेमिनाइन। मिसाल के तौर पर उख्तुन बहन, ठीक है, तो उसका जो अपोजिट है अगर ये मुअन्नस हमारे पास है तो इसका मुजक्कर है अखुन। अखुन यानी ब्रदर, भाई। इसी तरह बकरुन गाय, आपके सामने गाय है तो उसके सामने उसके अपोजिट में यानी बेल आएगा, यानी एक मुजक्कर आएगा। इसी तरह जामूसुन हमारे पास यानी इसम है जिसको हम कहते हैं बफल्लो, तो इसका अपोजिट हमारे सामने मौजूद है। यानी बताने की बात यह है कि अगर इसम आपके सामने एक हकीकी मुजक्कर या हकीकी मुअन्नस की शक्ल में आपके सामने आए, याद रखना चाहिए उसका हकीकी मुअन्नस या हकीकी मुजक्कर अवेलेबल होता है। समझ रहे हैं बात? तो बहुत ही आसान की बात। यानी पहली किस्म जिन्स के एतबार से ऐसी बात है कि जिसका यानी मुजक्कर का मुअन्नस अवेलेबल है या मुअन्नस का मुजक्कर अवेलेबल है। जैसे मैं आपको कहूंगा बाप, उसके अपोजिट में माँ। मैं आपको कहूंगा यानी भाई, उसके अपोजिट में बहन। मैं आपसे कहूंगा शौहर, उसके अपोजिट में उसकी बीवी। यानी जिस इस्म का मुअन्नस अवेलेबल है उस इस्म के मुजक्कर या मुअन्नस को मुजक्कर मुअन्नस हकीकी कहते हैं। हकीकी, रियल, ठीक है। और नेचुरली ये अक्सर हमारे पास जो भी जानदार है ना, जानदार अशिया में, जानदार चीजों में हमारे पास हकीकी मुजक्कर और हकीकी मुअन्नस होता है। दूसरी किस्म जो है उसको कहते हैं हमारे सामने, वो कहते हैं मुअन्नस क़ियासी। ठीक है, मुअन्नस क़ियासी से मुराद ऐसे मुअन्नस जिसके आखिर में हमारे पास कोई ना कोई अलामत होती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये मुअन्नस है, और अगर वो अलामत ना हो तो हम कह सकते हैं वो मुजक्कर है। मुअन्नस क़ियासी को हम मुअन्नस अलामती भी कहते हैं। याद रखिएगा, अलामत यानी निशानी, कोई ऐसी निशानी है जिसको आप देखने के बाद ये बता सकते हैं कि ये जो मुअन्नस हमारे पास है, ये मुअन्नस हमारे पास यानी इस इशारे की वजह से, इस क़ियास की वजह से, इस अलामत की वजह से। और वो अलामत अगर ना हो, वो साइन, वो निशानी अगर ना हो, तो आप मुजक्कर कह सकते हैं। देखिए जिन्स के एतबार से अगर हम मुअन्नस जानेंगे
तो मुअन्नस के अपोजिट में जो होगा वो मुज़क्कर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा फोकस मुअन्नस पे है। तो मुअन्नस क़ियासी ऐसा मुअन्नस जिसके आखिर में कोई ना कोई अलामत है, इसको मुअन्नस क़ियासी भी कहते हैं, इसको मुअन्नस अलामती भी कहते हैं। अब अलामत तीन किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप आखिर में ये गोलता देखेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं गोलता, जिसके आखिर में आप ये गोलता देखेंगे, याद रखिएगा कि वो हमारे पास मुअन्नस होता है। इसी तरह हमारे पास लास्ट में ये अलिफ और हमजा होता है। ठीक है, इस अलिफ और हमजा को हम कहते हैं अलिफ ममदूदा। इस गोलता को नेचुरली हम तनवीन वाला गोलता कहते हैं। अगर ये गोलता आखिर में होगा किसी भी इसम के आखिर में, याद रखिएगा वो मुअन्नस है। इसी तरह अगर हमारे पास अलिफ ममदूदा, अलिफ के साथ आखिर में हमजा होगा, तो याद रखिएगा वो भी मुअन्नस होगा। या हमारे पास अलिफ मकसूरा होगा। अलिफ मकसूरा का मतलब या होगा और या के ऊपर ये छोटी सी अलिफ होगी। ठीक है, तो ऐसे मुअन्नस को जिसके आखिर में हमारे पास कोई अलामत है, उसको मुअन्नस क़ियासी या मुअन्नस अलामती कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर हमारे पास नॉन लिविंग यानी गैर हकीकी, जिसको हम बेजान चीज कहते हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक चार्ट बना हुआ है। हमारे पास जिन्स के एतबार से हकीकी और गैर हकीकी होता है। हकीकी जिन्स हमारे पास जानदार चीजों में है। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास रियल मुज़क्कर और रियल मुअन्नस होता है, जैसे बाप के अपोजिट में माँ, जैसे हमारे पास ब्रदर के अपोजिट में सिस्टर, जैसे हमारे पास यानी यानी मर्द के अपोजिट में औरत। इसी तरह गैर हकीकी बेजान में जो मुअन्नस है, मुअन्नस की दो किस्में हैं। उसके बाद एक है क़ियासी। क़ियासी मैंने आपको बताया, इसको अलामती भी कहते हैं। अगर आप इसम के आखिर में ये तीन अलामा देखेंगे तो वो इसम कहलाता है यानी मुअन्नस। और कौन सा मुअन्नस? मुअन्नस क़ियासी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और मुअन्नस क़ियासी जो है, याद रखिएगा, इसको मुअन्नस अलामती भी कहते हैं। और तीन अलामात हैं। सबसे पहले गोलता, जो तनवीन वाला गोलता होता है, उसको कहते हैं तनवीन वाला गोलता। या अलिफ और हमजा होता है, जिसको कहते हैं अलिफ ममदूदा। या फिर या के साथ अलिफ होता है, जिसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। यानी गोलता आखिर में होगा, अलिफ ममदूदा होगा या अलिफ मकसूरा होगा। तो याद रखिएगा ये जो इसम है ये मुअन्नस है। और कौन सा मुअन्नस है? मुअन्नस क़ियासी, क्योंकि इसके आखिर में एक अलामत है, या मुअन्नस अलामती भी इसको कहते हैं। अब जो हमारे पास गोलता होता है, इसको हम गोलता वाले मुअन्नस अस्मा, हमारे पास तनवीन वाला गोलता, अरबी जुबान में मुअन्नस अस्मा की सबसे बड़ी अलामत है। ज्यादातर आप यही देखेंगे। मिसाल के तौर पर आप कुरान मजीद में देखते हैं जन्नतुन। जन्नतुन में सबसे पहले आप इसको बताइए, ये हमारे पास इसम है। आप माइक अपनी खोल भी सकते हैं। मैंने आपको पिछले बार ये भी बताया था कि इसम जो अरबी में कैसे जानते हैं, ज्यादातर या तो अलिफ लाम इब्तिदा में होगा, या हमारे पास तनवीन होगी, दो जबर दो जेर या दो पेश। ठीक है शौकत साहब, आप अपनी माइक खोल भी सकते हैं। अगर आप कोई सवाल होगा या किसी जगह कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। और आप देखें जन्नतुन में जो आखिर में गोलता है, तो हम ये बता सकते हैं कि जन्नतुन का तर्जुमा बाग है। अब बाग जो है ये हकीकत में यानी कोई जानदार चीज नहीं है, ये बेजान चीज है। अब बेजान चीज में आप कैसे बता सकते हैं ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? तो मैंने आपको बता दिया, रूल बता दिया कि जब भी आप आखिर में इन तीन अलामात में से कोई अलामत देखेंगे तो आप समझिएगा कि ये अरबी में ये जो हमारे पास इसम है, ये जिन्स के एतबार से अरबी में मुअन्नस है। मुअन्नस मतलब यानी फेमिनाइन है। ठीक है, जन्नतुन बाग, आम बाग को भी कहते हैं। तो ये जो कयामत में जन्नत मिलेगी उसको भी कहते हैं। और जन्नतुन जो है अरबी में मुअन्नस है। कौन सा मुअन्नस? मुअन्नस क़ियासी या मुअन्नस यानी अलामती भी इसको कहते हैं। इसी तरह आयतुन कुरान मजीद में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? आयतुन मतलब निशानी, इसमें भी गोलता है, तो ये भी हमारे पास मुअन्नस क़ियासी है। साअतुन घड़ी को कहते हैं, कुरान मजीद में लफ्ज आया है। साअतुन जो है घड़ी, ये भी मुअन्नस है, मुअन्नस इसम है, मुअन्नस क़ियासी या मुअन्नस अलामती है।
इसी तरह हसनतुन, हम पढ़ते हैं ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन, हसनतन कहते हैं उस वक्त, हसनतन क्यों पढ़ते हैं बाद में हम उसको जानेंगे, मगर आखिर में उस पे भी गोलता है। गोलता जब भी होता है तो वो मुअन्नस, मुअन्नस क़ियासी है, मुअन्नस अलामती है, भलाई। इसी तरह आकिबतुन, आकिबतुन यानी अंजाम, आकिबतुन भी एक यानी इसम है। और कौन सा इसम, मुज़क्कर या मुअन्नस? ये मुअन्नस है, क्योंकि हमें सबसे पहले इसम में से उसका जेंडर, उसका जो यानी उसकी जो जिन्स है उसको पहचानना है। इसी तरह करियतुन, करियतुन कहते हैं बस्ती को, कुरान मजीद का लफ्ज है करियतुन। करियतुन जो है ये भी मुअन्नस है। सलातुन नमाज के बारे में है, नमाज, नमाज भी जो है अरबी में इसम है। और ये कौन सा इसम है मुज़क्कर और मुअन्नस के हिसाब से? ये मुअन्नस है। कौन सा मुअन्नस? मुअन्नस क़ियासी या मुअन्नस अलामती। कैसे पता चला? क्योंकि आखिर में इस पे गोलता है। इसी तरह मौइज़तुन, नसीहत, अरबी में जो नसीहत लफ्ज है ना, ये भी हमारे पास मुअन्नस है, मुअन्नस क़ियासी। फितनतुन, आजमाइश, अरबी में फितना जो उर्दू में फितना होता है वो नहीं होता। फितनतुन अरबी में कहते हैं आजमाइश। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया आपके माल और आपके औलाद आपके लिए फितना है, वहां पर तर्जुमा जो होना चाहिए फितना नहीं होना चाहिए, वहां पर तर्जुमा होना चाहिए आजमाइश। ठीक है, यानी आपके माल और आपका जो यानी औलाद है वो हमारे लिए क्या है? आजमाइश, फितना नहीं। फितना तो और चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो फितनतुन जो है ये भी हमारे पास मुअन्नस है, मुअन्नस इसम है, मुअन्नस क़ियासी, क्योंकि आखिर में दो पेश, यानी हमारे पास यानी हमारे पास गोलता है। उम्मतुन, अब उम्मतुन जो है, उम्मतुन ये असल में माँ को कहते हैं। ठीक है, ये माँ जो है ये यहाँ पर गोलता नहीं बल्कि बड़ीता है, तो याद रखना चाहिए। अगर ये माँ के बारे में हम बात करते हैं तो माँ जो है उसके लिए हमें गोलता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह लाइलतुन, लाइलतुन रात, रात भी हमारे पास मुअन्नस क़ियासी है। मगर याद रखिएगा कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पर आप आखिर में गोलता तो देखेंगे मगर वो मुअन्नस नहीं बल्कि मुज़क्कर होगा। मिसाल के तौर पर खलीफतुन, अल्लामतुन, इसमें आखिर में गोलता है मगर इसके बरकस ये मुज़क्कर है। तो यहाँ पर थोड़े से एक्सेप्शंस आप देख सकते हैं। जैसे हम अरबी में सुहाबी का नाम देखते हैं हज़ीफतुन, हज़ीफा, ठीक है ना, वहां पे भी गोलता है आखिर में। तो वो कुछ एक्सेप्शन है, वो ज्यादा एक्सेप्शन हमारे पास नहीं है। ज्यादातर रूल यही है कि अगर आखिर में गोलता होगा तो वो इसम जो है वो मुअन्नस होगा और मुअन्नस क़ियासी या मुअन्नस अलामती होगा, क्योंकि आखिर में गोलता है। दूसरी किस्म है जिसके आखिर में अलिफ ममदूहा, ममदूहा कहते हैं अलिफ के बाद हमजा आखिर में होगा। ये हमारे पास इसको भी मुअन्नस अस्मा कहते हैं। जैसे ज़रक़ाउ, नीली, नीला रंग, ठीक है, नीला, ब्लू कलर। ज़रक़ाउ में देखिए अलिफ के बाद हमजा है, तो नीला जो है अरबी में ये मुअन्नस है, मुअन्नस क़ियासी। हमराउ, सुर्ख, है ना, रेड कलर, इसमें भी अलिफ और हमजा आप आखिर में देखिए तो ये भी अलिफ ममदूहा हो गया, ममदूदा हो गया। इसी तरह सफराउ, जरद यानी पीला कलर जिसको हम कहते हैं येलो कलर, सफराउ में अलिफ और हमजा है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी हमारे पास मुअन्नस है, इस मुअन्नस है, मुअन्नस क़ियासी। बैदाउ, सफेद रंग, तो बैदाउ में भी अलिफ और हमजा है, तो ये भी हमारे पास मुअन्नस क़ियासी है। सऊदाउ, सियाह रंग, इसमें भी अलिफ और हमजा आखिर में है, यानी अलिफ ममदूदा है। खदराउ, सब्ज रंग, अलिफ और हमजा है। अदराउ, दोशीजा यानी जिसकी अभी शादी नहीं, अनमैरिड, ये भी अरबी में मुअन्नस है, मुअन्नस क़ियासी। और सहराउ, जंगल, ये भी अरबी में हमारे पास मुअन्नस है इसम, क्यों? यानी मुअन्नस क़ियासी, क्योंकि इसके आखिर में अलिफ ममदूदा है। तीसरी किस्म अलामती यानी क़ियासी में या मुअन्नस क़ियासी में या अलामती में, वो है अलिफ मकसूरा, या के साथ अलिफ आखिर में हो। जैसे कुबरा, कुबरा में या है, अलिफ है, अलिफ पढ़ा जाता है, या नहीं पढ़ा जाता, छोटी अलिफ। सबसे बड़ी, सुगरा, सबसे छोटी। हुस्ना, सबसे अच्छी या खूबसूरत। उज़्मा, सबसे ज्यादा अजमत वाली। सुफला, सबसे निचला। उलिया, सबसे ऊंचा। वुस्ता, यहाँ पर आखिर में इन्हें दरमियानी। ये तमाम चीजों में आप देखिए हमारे पास आखिर में या के साथ एक खड़ी अलिफ है, या पढ़ा नहीं जाता, खड़ा अलिफ पढ़ा जाता है।
मगर इस अलिफ को अलिफ मकसूरा कहते हैं। इस वजह से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सुगरा, हुस्ना, कुबरा, उज़मा, ये तमाम अस्मा जो है ये मुअन्नस अस्मा है और मुअन्नस क़ियासी है। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जैसे हम पढ़ते हैं ना मूसा, मूसा में भी आखिर में या और अलिफ है, या ईसा उसमें भी या और अलिफ है। वो कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि वो चूंकि नाम है और नाम डायरेक्टली वो मुज़क्कर है, मगर ज्यादातर रूल यही है कि अगर आप आखिर में खड़ी अलिफ देखेंगे या के साथ, जिसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, तो ये वाले अस्मा भी हमारे पास मुअन्नस अस्मा है, मुअन्नस क़ियासी में शामिल है। तीसरी किस्म जो हमारे पास मुअन्नस की है उसको हम कहते हैं मुअन्नस समाई। मुअन्नस समाई का मतलब होता है ऐसे मुअन्नस जो ना हकीकतन मुअन्नस हो, यानी उस पे कोई हमारे पास यानी रियल मुअन्नस या मुज़क्कर ना हो, इसी तरह ना उनके पास कोई आखिर में अलामत हो, मगर अरब लोग उसको मुअन्नस जानते हैं, यानी अरब लोगों ने ऑलरेडी उनको मुअन्नस जाना, अरब लोग आखिर में उनको मुअन्नस मानते हैं। मुनीर साहब आखिर में आपको मौका में दूंगा इंशाल्लाह। अरब लोग उनको मुअन्नस मानते हैं, इन्हें बोल चाल के जबान में, या उनको उनने मुअन्नस मान लिया, तो ऐसे मुअन्नस को हम कहते हैं मुअन्नस सिमाई। यानी जो लोगों ने माना, क्योंकि हम अरबी जानते हैं ना, अरब लोगों की वजह से, जो लोग अरबी लोग हैं उनके हिसाब से हम उनको जानते हैं, तो ऐसे मुअन्नस को हम कहते हैं मुअन्नस सिमाई। इन्हें ना उनके पास आखिर में गोलता है, ना अलिफ हमजा, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, बल्कि ऐसे जो सुनने में महसूस होते हैं मुअन्नस। और ये कौन डिसाइड करते हैं? जो अरब के जो लोग हैं जिन्होंने इसको अरबी जबान को डेवलप किया है सदियों से, वही लोग इसको मुअन्नस मानते हैं। तो इसका कोई रूल नहीं, कोई हमारे पास कोई सेट, कोई एग्जाम्पल नहीं, बल्कि कुछ कैटेगरीज बनाई गई है जो मुअन्नस समाई, यानी जिनको अरब लोगों ने मुअन्नस माना। अब इसमें कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। जैसा मिसाल के तौर पर हवा के नाम, जब भी आप अरबी में हवा का नाम देखेंगे तो वो मुअन्नस है, हालांकि कोई भी आखिर में अलामत नहीं है। जैसे रेहुन हवा, ये मुअन्नस है। सरसरुन तेज आंधी, ये भी मुअन्नस है। समूमुन लाव गर्म हवा, ये भी मुअन्नस है। इसी तरह आग के नाम अरबी में कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे आग के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे नारुन आग, जहीमुन दहकती हुई आग, सईरुन भड़कती हुई आग। यानी जहन्नम के तमाम जितने भी नाम कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं, वो तमाम आग के नाम या जहन्नम के नाम बहसती मुअन्नस इस्तेमाल हुए हैं, मुअन्नस सिमाई। इसी तरह जिस्म के जोड़े आज़ा के नाम, यानी जिस्म में ऐसे आज़ा जो जोड़ों में है, जैसे हमारे पास दो हाथ है, यानी दो कान है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यानी जो भी चीज दो दो में है, दो पाँव है, ऐसे जोड़ों के आज़ा के नाम भी मुअन्नस है। मिसाल के तौर पर ज़िराउन दो बाजू, तो ये भी हमारे पास मुअन्नस सिमाई है। यदुन मुअन्नस है, दो हाथ। रिजलुन दो टांगे, मुअन्नस। आइनुन आंख, दो है ना, ये मुअन्नस है। उज़ुनुन दो कान, मुअन्नस है। कदमुन दो कदम, पाँव, मुअन्नस है। साकुन पिंडली, ये भी मुअन्नस है। अच्छा, लिसानुन, रासुन, सदरुन, कल्बुन, बतनुन, सिन्नुन, अनफुन, ये तमाम जो है या तो ये एक है या एक से ज्यादा है, तो ये तमाम एज़ा मुज़क्कर है। सिर्फ मुअन्नस वो जिस्म के एज़ा है जो दो दो में है, जैसे कान, जैसे हमारे पास यानी दो होंठ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो भी चीजें यानी दो दो के हाथों में हो, दो आंख हमारे पास है, दो कान है, दो पाँव है, दो पिंडली है, ये तमाम मुअन्नस है। तीसरी कैटेगरी, बल्कि चौथी कैटेगरी है शहरों, मुल्कों और कबीलों के नाम। ये तमाम जितने भी शहरों के नाम, मुल्कों के नाम, कबीलों के नाम, याद रखिएगा ये सब मुअन्नस है। जैसे कुरैशुन, आदुन, ये तमाम मुअन्नस है। और हमारे पास पांचवी कैटेगरी है मुतफर्रिक, यानी किसी कैटेगरी में, जैसे समाउन आसमान, जब भी लिखा जाता है मुअन्नस होगा। शमसुन सूरज, मुअन्नस है। हरबुन लड़ाई, मुअन्नस है। नफ्सुन जान, ये मुअन्नस है। असुन लाठी, मुअन्नस है। सबीलुन रास्ता, मुअन्नस है। अर्दुन जमीन, मुअन्नस है। दारुन ठिकाना, मुअन्नस है। बिरुन कुआं, मुअन्नस है।
दलवुन डोल ये भी मुअन्नस है, खमरुन शराब ये भी मुअन्नस है, कासुन प्याला ये मुअन्नस है, रुया ख्वाब ये तमाम मुअन्नस है। अब आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं ये कैसे मुअन्नस है, तो मैं आपको बताऊं, इनको मुअन्नस सिमाई कहते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है, ये रूल से एक्सेप्शनल है, इनका एक अलग कैटेगरी बनाई और ये 5 चीजें आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अब इन 3 कैटेगरीज में इन्हें मैंने आपको रियल मुअन्नस बताया, हकीकी मुअन्नस, फिर हमने मुअन्नस से दूसरी किस्म जो पढ़ी थी इससे पहले क़ियासी, फिर इसके बाद सिमाई। इन मुअन्नस के बगैर जो भी हमारे पास अस्मा आते हैं वो जिन्सन मुज़क्कर है। तो अगर आपने मुअन्नस के नाम जान लिए कैसे मुअन्नस के नाम रखे जाते हैं, बाकी जितने भी हमारे पास अस्मा है वो मुज़क्कर आते हैं। ठीक है, इसी तरह यानी याद रखिएगा, यानी जिस इस्म का वाहिद मुअन्नस मुज़क्कर हो, जैसे काम के नाम यानी मसदर की कोई जिन्स नहीं होती, मिसाल के तौर पर नसरुन, कत्लुन, फतहुन, इनका कोई जिन्स नहीं होता। मसदर यानी काम का जो भी नाम है इसका कोई जिन्स नहीं, मगर बाकी जितने भी अस्मा है जनरली उनका जो जिन्स या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। मुअन्नस अस्मा मैंने बताए, उसके बरक्स बाकी जितने भी हैं वो हमारे पास मुज़क्कर हैं। आखिर में एंड करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, हमारे पास अगर कोई इस्म होगा, यानी इस्म में भी वो इस्म जो जिसको हम कहते हैं इसमें सिफ्त, इसमें जात नहीं, इसमें सिफ्त, यानी जिसमें सिफ्त जाहिर हो, जैसे मुस्लिम, मोमिन, ये सिफ्त है ना। अगर आपके पास कोई वाहिद इस्म होगा जो सिफ्त में होगा, उसको आपको मुज़क्कर बनाना होगा, तो उसको आप मुज़क्कर यानी मुज़क्कर होगा, उसको आपको मुअन्नस बनाना होगा, तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपके पास मुस्लिमुन है, ये मुज़क्कर इस्म है, और ये कौन सा इस्म है? इसमें सिफ्त है। उसको आप मुअन्नस कैसे बना सकते हैं? आखिर में दो पेश को हटा के जबर लाइए, ठीक है, ये बनेगा मुस्लिमा, और फिर आखिर में दो यानी गोल ता लगाइए दो पेश के साथ, तो मुस्लिमुन बनेगा मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन होता है फरमान बरदारी करने वाली, फरमान बरदार मोमिन मर्द मुस्लिम कहलाएगा, मुस्लिमतुन फरमान बरदार यानी फरमान बरदार एक औरत। ठीक है, इसी तरह मुमिनुन को आप बनाएंगे मुमिनातुन, नून पे जबर और आखिर में गोल ता लाएंगे। खाशिउन आजिज़ी इख्तियार करने वाला मर्द, इसको अगर आप मुअन्नस बनाएंगे तो बनेगा खाशिअतुन, आइन पे जबर और आखिर में दो पेश। सालिहुन बनेगा सालिहतुन, काफिरुन बनेगा काफिरतुन, यानी आखिर का हर्फ जो है उस पे दो पेश हटा के जबर लाना, और उसके बाद हमारे पास गोल ता को लाना दो पेश के साथ। ये बन जाता है हमारे पास मुज़क्कर से मुअन्नस इसमें सिफ्त में। मुनाफिकुन बनेगा मुनाफिकतुन, मुशरिकुन बनेगा मुशरिकतुन, और फासिकुन बनेगा फासिकतुन। ये आखिर में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप शायद किसी साथी ने सवाल उठाया था, अगर वो अभी माइक खोले तो आप प्लीज अपनी माइक ओपन कर लें। मुनीर साहब कोई सवाल तो आप पूछ सकते अस्सलाम वालेकुम। हैं। ये वालेकुम अस्सलाम। हमने ममदूदा और मकसूरा, जी, इनका मीनिंग क्या है असल में? ममदूदा क्या होता है? ममदूदा का मैंने आपको पहले ही बता दिया। ममदूदा का मतलब होता है, यहाँ पर आपके सामने मिसाल दी गई है, यानी अलिफ और हमजा अगर आखिर में होगा। ममदूदा हम्म, का मतलब होता है अगर हमारे पास ऐसी अलिफ हो जिसके आखिर में हमजा भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अलिफ आखिर में हमजा भी है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़रक़ाउ में अलिफ के साथ साथ हमजा है, इसी तरह हमराउ में अलिफ के साथ साथ हमजा है। ये जो ये वाली अलिफ है ना, इसको ममदूदा कहते हैं, ममदूदा। जबकि मकसूरा जो है, ये अलिफ छोटी होती है और या के साथ होती है, इसके साथ जरूरी या होता है। जैसा मिसाल के तौर पर सुगरा, सुगरा में आप यहाँ पर देखिए, या कुबरा में आप देखिए, रा के साथ ये छोटी अलिफ है मगर या साथ में है, या को आपको साथ में ही रखना पड़ेगा। ऐसे अलिफ को कहते हैं मकसूरा। मकसूरा अलिफ के साथ साथ हमेशा या साथ में होती है, छोटी होती है। ममदूदा जो है वो अलिफ होता है बाज़ाब्ता, मगर आखिर में हमजा साथ में होता है। ये कुछ मिसाल दी गई है अलिफ कैसे कैसे हो सकता है। अलिफ ममदूदा होगा या अलिफ मकसूरा होगा, उस वक्त इसको हम मुअन्नस क़ियासी माने। ठीक है, तो इस पे हम ठीक आज का दर्स इख्तिताम करेंगे।
پلیز آپ اس کے نوٹ بنائیے گا، واٹس ایپ گروپ میں کچھ آپ کو مشق دوں گا، اس کو آپ کرنا پڑے گا. ٹھیک، ملتے ہیں اگلے انشاءاللہ درس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام